Hallelujah. Amen. I won't take much time. I have a word that the Lord has given to me past days, and I'm going to share from that word मैं itself. ज्यादा समय नहीं लूंगा। परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है जो आपके साथ आज सुबह बांटना How चाहता many हूं। of you remember last Sunday's preaching? How many of you remember? आप में से कितने लोगों को पिछले रविवार का संदेश याद I है? want to see your hands, please. Anyone can say from कोई which verse? Mera chudane wala in English. Anyone? कोई है जो? My Redeemer lives. Thank you. And what was the key verse? Key verse. और वो कौन सी थी वो जो वचन था जहां से हमने बोला था? From which book? From which book? कौन सी किताब थी वो जिससे हमने बोला था? The book of Job. अय्यूब की Ayub. पुस्तक से। Ayub. All right. So I'm going to continue with that same topic, but in a very different perspective. आज सुबह फिर दोबारा से मैं उसी ही विषय के बारे में बात करूंगा, लेकिन दूसरी जगह से बोलूंगा। It has been going, about what Redeemer is all about. I took my Bible on Monday morning. I said, I need to prepare for Sunday, and God gave me this verse. और मैं जो हूँ इस विषय को लेके छुड़ाने वाला, उसके बारे में सोच रहा था कि और भी संदेश तैयार करना चाहिए है। और सोमवार की सुबह मैं बैठा था और मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा बोलना है। So this Redeemer is still alive. और ये जो छुड़ाने वाला है ये अभी भी जीवित है। My Redeemer is still alive. मेरा छुड़ाने वाला अभी भी जीवित है। That is what we heard last Sunday, right? यही हमने पिछले रविवार में सुना था। It was Easter Sunday, Resurrection Sunday, so we had a very good topic about what Job says in midst of his difficulty, in midst of his suffering and pain. He is saying that my God is alive. और बहुत ही अद्भुत था कि पुनरुत्थान के रविवार में हम लोगों ने ये सुना कि कैसे हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब अपने जीवन में बहुत सी पीड़ा से होकर गुजरा, लेकिन परमेश्वर ने उसको कैसे छुड़ाया, और वो कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। And in midst of the suffering, still he is making one statement in that very verse. We can see he is saying, one day I will see him. और वो अपनी उस वेदना में, उस पीड़ा में कहता है, एक कथन कहता है, मैं अपने उद्धारक को देखूंगा। One day I'm going to see him. मैं एक दिन उसको देखूंगा। Can you know that Jesus was not present in Old Testament? आपको पता है क्या पुराने नियम में यीशु जो है उपस्थित नहीं थे? Well, we believe about triune God. That's a different aspect. हम त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो एक दूसरी विषय But है। but Jesus was not physically present in Old Testament. लेकिन यीशु पुराने नियम में शारीरिक दशा में उपस्थित नहीं थे। But can you imagine Job is saying that I am going to see my Redeemer one day. लेकिन कल्पना करें कि अय्यूब कहता है मैं अपने छुड़ाने वाले को एक दिन देखूंगा। What a faith he has in his God. कितना ज्यादा उसका विश्वास था अपने परमेश्वर पे। Hallelujah. And I pray that we may muster our faith to know and believe and decree and declare, saying that one day I am going to see my Yeshua face to मेरी प्रार्थना face. है कि हम अपने मनों में इस चीज की घोषणा करेंगे, अंगीकार करेंगे कि मैं अपने उद्धारक को या छुड़ाने वाले को एक दिन देखूंगा। How many of you are excited to see Jesus face to face one day? हम में से कितने लोग तैयार हैं उस यीशु को एक दिन मुखामुख देखने के लिए? Hallelujah. Your excitement and your hands, it says a lot. आपके हाथ जो है वो बहुत कुछ बताते हैं। But I want to encourage you with one लेकिन statement. एक कथन बोलकर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Run the race. अपनी दौड़ को दौड़ें, Run the race. अपनी दौड़ को दौड़ें And receive that crown और उस यीशु से उस मुकुट को प्राप्त करें, so that you will see Jesus. ताकि आप उस यीशु को देखने पाएं। Hallelujah. There will be no breaking news, no live coverage. It will be all of a sudden. वहाँ पर जो है एकदम से एक बड़ी समाचार की घोषणा नहीं की जाएगी, लेकिन वहाँ पर एकदम से अचानक से कुछ हो जाएगा। There will be a big trumpet sound. एक बहुत ही बड़ी तुर्री की आवाज होगी, A huge trumpet sound. बहुत बड़ी ऊंच
ऊंचे शब्द में एक तुर्री की I आवाज was just होगी। wondering that we have invested lakhs of rupees in this sound system. मैं सोच रहा था हमने लाखों रुपए इस साउंड सिस्टम में And लगाया है। this sound is only audible maybe till the parking area maximum. और शायद ये जो आवाज है इन जो वाद्य यंत्रों से निकलती है वो शायद हमारे पार्किंग तक पहुंच सकती है। But can you imagine the trumpet call of God? लेकिन क्या आप Wow. कल्पना कर सकते हैं उस तुर्री की आवाज की जो फूकी जाएगी? That trumpet will be so loud. वो तुर्री जो है वो बहुत ही ज्यादा ऊंची आवाज होगी And that sound will be heard in this entire earth. और पूरी पृथ्वी के ऊपर वो आवाज गूंजेगी। Such a powerful trumpet voice you are going to hear very soon. इतनी शक्तिशाली तुर्री की आवाज इस पूरी पृथ्वी के ऊपर And, गूंजेगी। and the moment that sound is being heard, earthquakes are bound to happen. जैसी वो Wow. आवाज सुनी जाएगी एकदम से भूकंप उठने It लगेंगे। will shake the earth. वो पृथ्वी को उसको वो हिला देगी And all those saints who are sleeping in Christ, they are going to come up. और मसीह में जो सो रहे हैं वो सब जी उठेंगे। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nations will fall, governments will fall because of that big trumpet sound. राज्य जो है वो गिर जाएंगे, पृथ्वी की चीजें जो है वो गिराई जाएंगी जब वो तुर्री की आवाज सुनाई देगी। My Redeemer lives. मेरा छुड़ाने वाला जीवित He है। said, I am going वो कहता है मैं जा रहा and हूँ I am going to come back. और मैं वापस आऊंगा। He didn't say, I'm going and it is forever, I'm vanished. He और didn't say यीशु like ने ऐसा that. नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ और वो सब हम पूरे समय के लिए वो खत्म हो He said, चुके I हैं। am going to prepare a place for you. यीशु ने बोला Wow. मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक जगह A तैयार करूं। good home. एक सुंदर भव्य तुम्हारे लिए घर तैयार A करूं। room that is being prepared in pure gold. एक कमरा जो श्वेत सोने में बना हुआ है उसको तैयार 24 करूं। karat gold. वो 24 कैरेट गोल्ड से तैयार करूं। And Jesus is saying, once I prepare that room, और फिर I'm यीशु going to come back, कहते हैं- zoom down. यीशु कहते हैं कि जैसे मैं उस कमरे को घर को तैयार कर लूंगा मैं एक झट से एकदम से लेने तुम्हें आ So जाऊंगा। this Redeemer is strong. इसीलिए ये जो छुड़ाने वाला है वो बहुत सामर्थी है। He is strong, so he's going to come back. वो इतना शक्तिशाली है इसलिए वो वापस आने वाला So है। please turn with me to Jeremiah chapter 50. इसलिए मेरे साथ खोल ले यिर्मयाह की पुस्तक उसका 50वां अध्याय। Jeremiah 50 verse 33 and 34. यिर्मयाह की पुस्तक उसका 50वां अध्याय उसका 33 और 34। I will be reading in English and then we'll be hearing it in Hindi. It says, thus says the Lord of hosts, the people of Israel are oppressed and the people of Judah with them. All who took them captive have held them fast. They refuse to let them go. Their Redeemer is strong. The Lord of hosts is his name. He will surely plead their cause that he may give rest to the earth, but unrest to the inhabitants of Babylon. यहाँ ऐसा लिखा है सेनाओं का यहोवा यो कहता है इज़राइल और यहूदा दोनों बराबर पिसे हुए हैं और जितनों ने उसको बदुआ किया वे उन्हें पकड़े रहते हैं और जाने नहीं देते। उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है। वह उसका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे परंतु बेबीलोन के निवासियों को व्याकुल करे। Amen. Hallelujah. May the Lord bless all of us with the hearing of this word. परमेश्वर के वचन के सुने जाने पे परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। Amen. 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 Now, Babylonian rule was so powerful that they took Israelites and Judah in their control. अगर आप देखेंगे तो बाबुल का जो शासन था वो इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने इज़राइल को और यहूदियों को अपने कब्जे में ले लिया था। Israelites are under slavery. They have been oppressed hard. They are pressed hard by the और Babylonians. इज़राइलियों के ऊपर जो उत्पीड़न था बंधुआई का वो इतना ज्यादा था कि वो पूरी रीति से दबा दिए गए थे। And they have been trying to request the Babylonian rulers to free them out और of this इज़राइली slavery. लोग जो है बाबुल के जो अगुए लोग थे उनसे जाकर शासकों से कहते थे कि तुम
तुम हमें छुड़ा दो इस बंधुआई And से। that is what we see in 33 last. It says they refuse to let them go. और आखिरी में हम देखते हैं 33वें पद का आखिरी लाइन में लिखा है और जाने नहीं देता। The Babylonians did not allow or did not free the Israelites to be free. और बाबुल के जो अगुवे थे, जो उनके जो लोग थे, उन्होंने इजराइलियों को जाने नहीं दिया। So what we see is that Israelites are crying unto God. तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इजरायली लोग परमेश्वर के सामने रो रहे They हैं। are crying, saying that, God, you know what we are going through. Please make us free out of this Babylonian exile. इजरायली लोग लोगों के परमेश्वर के सामने चिल्लाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तू देख रहा है कि हम किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, तू हमको यहाँ से बाहर निकाल। And in verse 34 it says, their Redeemer is और strong. यहाँ 34वें पद में लिखा है उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। Israelites are saying that we know that our Redeemer is strong. और इजरायली लोग यहाँ कह रहे हैं हमको मालूम है कि हमारा छुड़ाने वाला सामर्थी है। They are saying that, hey, Babylonian rulers, we know that you are strong, but you are not strong or equal to our और God. यहाँ इजरायली लोग बाबुल के शासकों से कह रहे हैं तुम इतने सामर्थी नहीं हो, लेकिन जो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है वो यहोवा सामर्थी है। Redeemer is strong, the Lord of hosts is his वो name. छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। His name is Lord. उसका नाम यहोवा है। And that is what Israelites are saying. We know that one day this Redeemer will take us back. और इजरायली लोग कह रहे हैं हमें मालूम है कि एक दिन हमारा छुड़ाने वाला हमें वापस ले जाएगा। So what does a Redeemer do? तो हमारा छुड़ाने वाला करता क्या है? What is the actual biblical meaning of the word Redeemer? बाइबल के आधार पर छुड़ाने वाले का मतलब क्या होता In है? Hebrew, there are three meanings of a Redeemer. इब्रानी अगर भाषा में देखा जाए तो छुड़ाने वाले का तीन अर्थ है। Very first meaning is a Redeemer is a person who will buy back. जो सबसे पहला अर्थ है छुड़ाने वाले का वो यूनानी भाषा में ये है कि तुमको वो वापस ले लेता है। Redeemer is the one who will buy back. वो तुमको खरीद कर वापस ले लेता है। Second meaning is a Redeemer will liberate or give freedom. दूसरा छुड़ाने वाले का मतलब है कि वो तुमको आजाद कर देता है। And the third meaning is a Redeemer will restore what was been lost. और तीसरा छुड़ाने वाले का मतलब है जो हमने खो दिया होता है वो हमको पुनः बहाल कर देता है या वापस फेर देता If है। you're writing, you can write the three meanings of the word Redeemer. अगर आप लिख रहे हैं तो अपने लिए लिख लें कि क्या मतलब होता है छुड़ाने वाले का। If you have good memory power, you can register this in your brain. Three meanings. अगर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है तो अपने दिमाग में इसको याद रखें। A Redeemer buys back. छुड़ाने वाले का मतलब है कि वो आपको वापस खरीद लेता है। Second, it will liberate. Redeemer will liberate you. दूसरी चीज है कि छुड़ाने वाला आपको आजाद कर देता And the है। third is a Redeemer will restore what is been lost. और तीसरा छुड़ाने वाले का मतलब है जो हमने खो दिया है उसको पुनः वापस फेर देता So है या बहाल this कर morning, देता है। as you hear our words, इसलिए आज सुबह जब आप हमारे शब्दों को सुनते हैं, if there is anyone over here who feels that these three meanings are very important for me, अगर हम में से कोई यहाँ बैठा है जो सोचता है इन तीनों अर्थ का मेरे जीवन में कुछ मतलब है, it can be anything over your life. आपके जीवन में वो कोई सी भी बात हो सकती है, Whatever it is, कोई सी भी विषय क्यों ना हो। let me tell you from the word of मैं God. परमेश्वर के वचन से आपसे कहना चाहता हूँ। According to Jeremiah chapter 53 verse 33 and यिर्मयाह 34. के 50वें अध्याय के 33 और 34 पद के आधार पर This Redeemer is going to give you freedom this ये morning. छुड़ाने वाला आपको आज सुबह आजाद करेगा। Hallelujah. Amen. This Redeemer is going to give back that is been lost. ये छुड़ाने वाला जो आपका खो चुका है उसको वापस फेर This देगा। Redeemer is going to buy you back. ये छुड़ाने वाला आपके लिए वापस मोल देकर आपको खरीद Say लेगा। amen with me if you have faith. मेरे साथ आमीन बोलिए अगर आप विश्वास There are करते many हैं। things that have been gone away from your hand. आपके हाथ से ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जा चुकी There हैं। are many things that are lost. आपके पास ऐसी बहुत
बहुत सी चीजें थी लेकिन अब वो खो चुकी हैं। One by one, it has been lost. एक एक कर कर वो चीजें खो रही हैं। There is no freedom, there is no peace within those four walls where you stay. आप जिस घर में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, उन चार दीवारों के अंदर आपके पास शांति नहीं है। And enemy has taken a lot of things from your hand, from your family. और शत्रु ने आपके हाथ से, आपके परिवार के हाथ से बहुत सी चीजें छीन ली हैं। Every week, every Sunday, you have a lot of things to share before God. और हर हफ्ते और हर रविवार आपके पास ऐसी बातें हैं जो आप परमेश्वर से बांटना चाहते हैं। But can I say one thing? लेकिन क्या मैं आपसे एक बात बोलूं? Let me declare in Jesus' name. यीशु के नाम में मैं आपके ऊपर इस चीज की घोषणा In करता the हूं। name of Jesus, this Redeemer is going to give you back that you have lost. यीशु के नाम में ये छुड़ाने वाला जो आपने खो दिया है वो आपको वापस फेर This देगा। Redeemer is going to restore your fortunes. ये जो परमेश्वर है वो Hallelujah. आपकी सीमाओं को, आपकी हदों को वापस फेर देगा। Enemy has been trying to pound you hard and press you hard, but in the name of Jesus, this morning I decree in Jesus' name that this strong Redeemer is going to liberate you. शत्रु ने आपको दबा दिया है, नीचे Hallelujah. गिरा दिया है, लेकिन ये मजबूत शक्तिशाली छुड़ाने वाले एक बार फिर से आपको वापस उठाएगा। Hallelujah. You know what we see in the book of Exodus? आपको पता है हम निर्गमन की पुस्तक में क्या देखते हैं? Israelites were under slavery. इजरायली लोग बंधुआई में थे। There was a king, King Pharaoh, and he was so hard-hardened. एक राजा था, उसका नाम फिरौन था, वो बहुत ही कठोर हृदय का था। Exodus 1, 2, 3, we say that Israelites cried. निर्गमन की पुस्तक उसके पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जो इजरायली है वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। Pharaoh had a big army. और ये जो फिरौन थी उसके पास एक बड़ी सेना He थी। was powerful. वो बहुत ही शक्तिशाली And था। that is why Israelites were under slavery for 400 years. इसीलिए क्योंकि ये शक्तिशाली राजा था, इजरायली लोग इसके शासन के नीचे 400 वर्ष रहे। They were under slavery. बंधुआई में 400 वर्ष रहे। But can I say something? क्या मैं आपको कुछ बोलूं? God is speaking to Moses परमेश्वर मूसा से बात करते हैं and saying, hey Moses, I'm going to use you. और परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। Don't be worried about King Pharaoh. तू चिंता मत कर फिरौन He राजा के is बारे just में a सोच dust. कर। He's just a dust. वो तो सिर्फ एक मिट्टी ही है। I am the King of Kings. मैं राजाओं का राजा हूँ। I will use you. मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। Moses is saying, hey God, I can't. I am not able to speak properly. मूसा कह रहा है नहीं परमेश्वर, मैं तो अच्छे से सो भी नहीं I- मैं बोल भी नहीं पाता। I am afraid to go before King Pharaoh. मैं तो डरा हुआ हूँ इस राजा फिरौन के सामने God जाने के is लिए। saying that, hey Moses, go because I am who I am. परमेश्वर मूसा से कहता है तू जा इस फिरौन राजा के सामने, क्योंकि मैं वो हूँ सो हूँ। And this strong God showed his power over Pharaoh. और फिर ये शक्तिशाली परमेश्वर ने Wow. अपनी सामर्थ फिरौन राजा के सामने How प्रकट many करी। plagues did God send? कितने ढेर सारे महामारी भेजी How परमेश्वर many plagues did God send to show his power? परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाने के लिए कितनी महामारियां, Quickly, how many plagues? कितनी महामारी? 10 plagues. 10 वो महामारियां थी। I will showcase God's power through one plague. मैं अपनी सामर्थ जो हूँ एक महामारी से There दिखाऊंगा। was a river called River Nile. एक नदी थी जिसका नाम था नाइल नदी। Pharaoh was proud of that river. और फिरौन जो है इस नदी से डरा हुआ था। Pharaoh was proud of that river जो फिरौन था वो बहुत घमंड करता था इस नील नदी के ऊपर, because this river belonged to the Egyptians. क्योंकि ये जो नदी थी वो जो मिस्री लोग थे उनके पास थी। And God is sending one plague. और फिर परमेश्वर एक महामारी भेजते हैं। Just think about the strength of God. आप देखिए परमेश्वर की शक्ति के I'm ऊपर। not speaking about that small, small, I would say, the plastic swimming bathtub where kids play. I'm not saying about that. मैं ऐसे पानी की बात नहीं कर रहा हूँ जो बच्चों के लिए जैसे एक टब के अंदर हम पानी समा देते हैं। I'm speaking about a river. हम नदी के बारे में बात कर रहे हैं। God had his power over that river. My परमेश्वर की God. शक्ति उस नदी के ऊपर It थी। is huge. Nile River is huge.
वो जो नील नदी है वो बहुत ही विशाल He है। turned that water into blood. उस परमेश्वर ने वो नील नदी के पानी को लहू में बदल दिया। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? Can you do that? क्या हम में से कोई कर सकता है? God is saying to King Pharaoh परमेश्वर राजा फिरौन से ऐसा that कहता है I have made my mind to redeem Israelites out of your कि hand. मैंने अपना दिमाग मना लिया है कि मैं इजरायलियों को छुड़ाऊंगा। I have made my mind. मैंने अपना दिमाग बना लिया है। You make your mind. तुम अपना दिमाग बना लो। You show your strength. तुम अपनी शक्ति दिखा लो। I will show how powerful I am. मैं परमेश्वर होकर अपनी शक्ति दिखाऊंगा। Can anyone play against God? कोई है जो परमेश्वर के विरोध में खेल सकता है? Can anyone say that I'm going to challenge you, God? कोई है जो परमेश्वर को चुनौती दे सकता है? There are 2 to 3 in modern age who challenged God. हैं 2-3 ऐसे हैं इस You know that? आधुनिक दुनिया में जिन्होंने परमेश्वर को चुनौती दी। They challenged God. उन्होंने परमेश्वर को A चुनौती very दी। fine example is the captain of that big ship called Titanic. और सबसे अच्छा उदाहरण वो व्यक्ति है जो कप्तान था टाइटैनिक जो जहाज था उसका। 100 years ago, when it went for its first voyage, this captain made a statement in front of everyone. और 100 वर्ष पहले जब ये जहाज पानी में निकला तो उसने एक कथन कहा था। He said that even God cannot sink this ship. उसने ऐसा कहा था कि परमेश्वर भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता। A foolish statement. एक बहुत ही मूर्खता की बात। He's saying even God cannot even touch this big ship. उसने बोला कि परमेश्वर इस जहाज को छू भी नहीं सकता। Rest is history. और फिर उसके बाद का तो इतिहास ही बन गया। Rest is history. उसके बाद का तो इतिहास ही बन गया है। Let's not take God for granted. आइए मिलकर परमेश्वर को अपने लिए पक्का या हल्के में ना ले। Don't take God for granted. परमेश्वर को हल्के में ना ले। Don't think that he's slim and trim and he cannot do anything over your lives. और हम ये ना सोच के बैठ जाए वो दुबला पतला परमेश्वर है वो हमारे जीवन के ऊपर कुछ नहीं कर He सकता। said and this universe came into existence. उसने कहा और भूमंडल जो है उसकी सृष्टि हो गई। Wow. So this strong redeemer is someone that we should be careful of. इसलिए ये जो मजबूत जो छुड़ाने वाला है उससे हमें ध्यान रखना है, चौकन्ने रहना है। Because this strong God can squeeze you and he can teach you. क्योंकि ये सामर्थ्य शक्तिशाली परमेश्वर हमें निचोड़ सकता है फिर हमें एक अच्छा सबक सिखा सकता है। Got it? This strong God can squeeze you. ये जो मजबूत शक्तिशाली परमेश्वर है वो हमें निचोड़ सकता है। You have your toothpaste in your washroom. आपने देखा है कि आपके बाथरूम में जो है ये एक मंजन वो टूथपेस्ट होता है। What you will do at the end, you will squeeze that toothpaste so that at least a chickpea of paste will come so that you can brush. और आप देखते हैं जब आपका टूथपेस्ट खत्म होने वाला होता है तो आप उसको दबा कर कोशिश करते हैं आखिरी तक एक चने के समान कुछ निकल जाए। You do that? Everyone Indian style, we do that. हम Or even African community, we do that. We give our strength over that toothpaste so that a little will come out. पूरी ताकत लगा देते हैं कि किसी तरह से आखिरी जो थोड़ा बचा है वो भी हमारे ब्रश में लग Can जाए। I say something? क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? Let not God squeeze us. होने पाए कि परमेश्वर हमें ऐसे ना निचोड़े ना Don't दबाए। give a chance to God to squeeze you. परमेश्वर को मौका ना दे कि परमेश्वर हमको ऐसे दबा दे पिस दे। Hallelujah. Hallelujah. There are a lot of things that is coming in over here. कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में आ रही हैं। Don't take God for granted. परमेश्वर को हल्के में ना ले। He is a compassionate God, but वो He is तरस- also consuming fire. वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है लेकिन वो भस्म करने वाली आग भी है। He will show His power over वो you. अपनी शक्ति को आपके ऊपर दिखाएगा। He said that. He did like that. She did not say that. She did not say praise the Lord or Jai Masih ki. Don't think about all that. उसने ऐसा कहा था वो ऐसा कह रही थी उसने ऐसा करा था
उसने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, उन सब चीजों पे अपना ध्यान ना लगाएं। She did not call me when I was down in health. That person did not call me. Don't think about all that. जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस व्यक्ति ने मुझे कॉल नहीं किया, उस व्यक्ति ने मुझे कॉल नहीं किया। ये सब बातें मत सोचिए That अपने is दिमाग not में। for what God has called you. वो मकसद नहीं है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया God है। has not called you to say bad about others. परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप दूसरों की बुराइयां करें। You have time to take your phone and say bad about others, आपके पास समय है कि आप अपना फोन लेकर एक दूसरे की बुराई but करें, you don't have time to take your phone and join in Zoom for the meeting. लेकिन आपके पास समय नहीं है कि आप अपना फोन लेकर जूम मीटिंग में जुड़ जाएं प्रार्थना के लिए। Reality. ये सत्य है। I'm not speaking about one, I'm not speaking about you. I'm speaking in general. मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सामान्य रूप में ये बात कर रहा हूं। We have time for others. हमारे पास दूसरों के लिए टाइम है, We have time to speak about others. हमारे पास दूसरों के बारे में बोलने के लिए टाइम You है। don't have 5 minutes to speak to God. हमारे पास 5 मिनट नहीं है कि हम परमेश्वर के बारे में कुछ बोल दें। You don't have a minute to sing gospel song. हमारे पास 1 मिनट नहीं है कि हम सुसमाचार के गीतों को गा दें। We don't sing that God is good all the time. Thank you, Jesus. We don't sing gospel songs. हम कभी भी हम गॉस्पेल परमेश्वर के सुसमाचार के गीतों को नहीं गाते। We have परमेश्वर ने time बोला to, है, we have time for reels. We have time for Bollywood, Hollywood movies, Fire Stick, JioStar, Netflix, everything we have time, but we don't have time for God. हमारे पास दुनिया की हर चीजों के लिए समय है। हम हर चीजों को देखना चाहते हैं अलग अलग माध्यम से, लेकिन हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं I है। have time to watch 8 hours of cricket match, but I don't have time to pray to God. मेरे पास 8 घंटे क्रिकेट मैच देखने का टाइम है, लेकिन परमेश्वर के लिए मेरे पास समय नहीं है। Don't allow this strong Redeemer to hold you. अनुमति ना दे कि ये शक्तिशाली जो छुड़ाने वाला है आपको पकड़ ले। I'm not able to hear any amen and hallelujah. That's fine. मैं आपसे सुन नहीं पा रहा हूँ कोई भी हालेलुया आमेन। I hold Jaden's hand. मैं जेडन का हाथ पकड़ता हूँ। Can he run away from me if I hold him tightly? क्या अगर मैं उससे Tell जोर me. से पकड़ लूँ वो भाग जाएगा मुझे Tell छोड़ me. के? If I want to squeeze him and I say, Jaden, you be here, he knows he cannot move an और inch. अगर मैं दबाकर उसको कस के पकड़ लूंगा तो वो 1 इंच भी नहीं हिल Think सकता। about God. परमेश्वर के बारे में Think सोचिए। about God. परमेश्वर के बारे में सोचिए। Let him not squeeze you. होने पाए वो आपको दबा ना ले कस के। He takes heavy weight. वो बहुत ज्यादा वजन उठाता है। He will hold you. You can't run to east, west, north, nothing. अगर उसने आपको पकड़ लिया तो आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी हिल नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते। You know why Israelites are in slavery? आपको पता है इजरायली लोग बंदवाई में क्यों हैं? What is the reason? क्या कारण है? What is the reason? क्या कारण है? They did wrong in the sight of God. उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। Israelites did not follow what God said. इजरायलियों ने उन बातों का पालन नहीं किया जो परमेश्वर कह रहे थे। What happened? फिर क्या हुआ? What happened? क्या हुआ फिर? They are under enemy's attack. अब वो शत्रु के आक्रमण के नीचे हैं, One by one. एक के बाद एक। Every Sunday you have 10 points to say, God, this is happening, this is happening. What is this all about? हर हफ्ते आपके पास कुछ कुछ परमेश्वर को बोलने के लिए, आज ये हो गया प्रभु, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। I would rather say that introspect yourself मैं first. पहले आपसे ये कहना चाहूंगा अपने अंदर अपने आप को जांच लें। Introspect what you have done. देख ले अपने अंदर कि आपने क्या किया है। But again, He is a compassionate God. लेकिन फिर भी वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। Israelites cried, और वो इजरायली लोग रोते हैं and Redeemer came in और between. एकदम से छुड़ाने वाला बीच में आ जाता है। That's how our daddy is. यही ऐसा ही हमारा पिता है। Hallelujah. He knows what you're going वो through. जानता है कि आप किस चीज से होकर गुजर रहे हैं। And you know what it says in verse 34? और फिर आप देखिए यहाँ पर 34वें पद में 34 क्या was B. लिखा है। 34वें पद का ब भाग। They are saying, surely He will plead our और cause. वहाँ ऐसा लिखा है वह उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा He will give rest to the earth. और वो जो है पृथ्वी को चैन देगा। Amen. I pray that God will give you rest this morning. मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है परमेश्वर आपको चैन दे।
Hallelujah. You are restless, right? आप लोग बेचैन हो रहे हैं, Lot of things. बहुत सी चीजें हैं. You look at us, hey, Pastor Jobin, oh, I say, how are you? I'm good, but you're restless within. आप मुझे देखते हैं, बोलते पास्टर जॉबिन आप कैसे हैं, तो आप पास्टर जॉबिन को जॉबिन से कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, You're लेकिन restless. आप बेचैन हैं, You're आप restless. बेचैन हैं. You have a lot of things are going on. बहुत सी चीजें हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं. Every time something is bothering you. कोई ना कोई हर समय आपको किसी चीज की चिंता है. In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में, By the authority that has been given to me, परमेश्वर का अधिकार जो मुझे मिला है, I declare rest over your life, over your family. मैं आपके जीवन में आपके परिवार के ऊपर चैन की घोषणा करता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. According to the word that we read. परमेश्वर के वचन के आधार पर जो In हमने सुना, Jesus' name, may you receive peace. यीशु के नाम से आपको शांति मिलने पाए. Hallelujah. Praise God. Our Redeemer is strong. परमेश्वर जो हमारा छुड़ाने वाला है वो शक्तिशाली है, And when He redeems, और जब वो छुड़ाता है He will loosen you. वो आपको हल्का कर देगा. He will loosen your chain. वो आपकी जंजीरों को हल्का तोड़ देगा. That is what we sang a few minutes ago. अभी थोड़े समय पहले हमने वही गीत गाया. The song says, break every chain. अभी हमने गीत में गाया कि तू सारी जंजीरों को तोड़ दे. Break every chain. सारी जंजीरों को तू तोड़ Hallelujah. दे. Hallelujah. God is able to break that chain परमेश्वर योग्य है सारी जंजीरों को तोड़ने के लिए, because He is strong. क्योंकि वो मजबूत है. Hallelujah. Hallelujah. I just want to say a few things and then I will wind up. मैं जल्दी से कुछ बातों को कहूंगा और फिर हम खत्म There are करेंगे. 4 to 5 things why our Redeemer is strong. 4 से 5 ऐसे चीजें हैं जिससे हमको ये पता चलता है हमारा छुड़ाने वाला जीवित है. Our strong Redeemer is stronger than the generations of bondage. हमारा उद्धारकर्ता या हमारा छुड़ाने वाला शक्तिशाली है, क्योंकि वो हमको परमेश्वर हमारे पीढ़ियों के ऊपर भी अपने शक्ति को दिखा सकता है क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है. Hallelujah. He is stronger than those generational curse that we have. जो पीढ़ियों के श्राप हैं उससे भी छुड़ाने की शक्ति रखने वाला ये छुड़ाने वाला है. Second thing, दूसरी चीज, our Redeemer is strong than the strongholds of captivity. जो बंधुआई का जो ऊंचा या मजबूत गढ़ है उससे भी ज्यादा मजबूत हमारा छुड़ाने वाला है. Enemy has taken hold of you. शत्रु ने आपको पकड़ लिया है. You are under captive. आप जो है बंधुआई में है. You do not know what is happening. आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ क्या But हो let रहा me है. tell you that this strong Redeemer is going to take you out of the hands of the लेकिन enemy. आपसे कहना चाहता हूं कि शत्रु के हाथ से, उस बंधुआई से ये छुड़ाने वाला आपको बाहर And निकालेगा. that is what Prophet Jeremiah is speaking in chapter number 50. और यर्मिया की पुस्तक के 50वें अध्याय में यर्मिया जो नबी है वो यही बात कहता Prophet है. Jeremiah is saying, hey Israelites, don't worry. Our strong Redeemer is on his way and his name is the King of Kings. यर्मिया कहता है कि हमारा छुड़ाने वाला रास्ते में ही है और वो राजाओं का राजा है. This morning, there are something that has taken hold of you. इस सुबह के समय किन्हीं चीजों ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया There are है. there are a lot of hidden strongholds over your life and आपके family. जीवनों के और परिवारों के ऊपर कुछ छुपे हुए ऐसे बंधन है जिसकी जकड़न आपके ऊपर है. Lot of strongholds. बहुत से मजबूत गढ़ हैं जिन्होंने आपको पकड़ा हुआ है. You are a Christian. You come over here. You worship God, but still you are under that bondage. आप मसीही हैं, आप कलीसिया में आते हैं, लेकिन फिर भी आप उस बंधुआई के नीचे हैं. I pray that the strong Redeemer will bring you out of that मेरी situation. प्रार्थना है कि ये शक्तिशाली छुड़ाने वाला आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाले. Because God is the commander of heaven's armies. क्योंकि परमेश्वर जो Oh, है वो hallelujah. अधिकारी है स्वर्गीय सेना का. He is the commander of heaven's armies. वो अधिकार है, वो अधिकार देता है
स्वर्गीय सेना के ऊपर। He has a big team. उसकी एक बहुत बड़ी सेना है। And He has commanded His angels over और you. उसने अपने जो है सैनिकों को आपके ऊपर भेज रखा है। If God is with you, you will never lose a battle. अगर परमेश्वर आपके साथ है, आप कोई भी युद्ध में नहीं हारेंगे। Hallelujah. Hallelujah. In the Old Testament, we see about Midianites. They were unnumbered. They could not be counted. पुराने नियम में हम मिद्यानियों के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में लिखा था कि वो गिनती से बहुत थे। But you know what God is saying to Jehoshaphat? लेकिन पता है परमेश्वर यहोशाफात से क्या कहता That है? do not worry, the battle is mine. कि It's तू mine. चिंता मत कर क्योंकि युद्ध तो मेरा है। This morning, God is going to break some strongholds over your life. आज सुबह परमेश्वर आपके Hallelujah. जीवनों से किन्हीं मजबूत गढ़ों Hallelujah. को तोड़ेगा। Every generational curse, we break it in the name of हर Jesus. पीढ़ियों का श्राप परमेश्वर आज सुबह के समय तोड़ने पर। Hallelujah. Every powers of witchcraft, we break it in the name आज of सुबह के Jesus. समय सारे जादू टोने जादू मंत्र की शक्तियां यीशु के नाम से तोड़ी जाए। Every black magic, we break it in the name of हर Jesus. काला जादू की शक्ति आज सुबह यीशु के नाम से तोड़ी जाए। Every evil spell, every word spoken against you, we cancel it in the name of Jesus. हर नकारात्मक बातें हर शब्द जो आपके ऊपर बोले गए हैं यीशु के नाम से तोड़े जाए। Every spirit of sickness, we bind you in the name of हर Jesus. बीमारी की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से तोड़ी जाए। Every financial problem, we break you in the name of Jesus. हर आर्थिक समस्या और बंधन यीशु के नाम से तोड़े जाए। Rabahaduna risha sekene rimamba. Hallelujah. 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 हालेलुया। Every spirit of suicide, every spirit of depression, we break you in the name of Jesus. आत्महत्या की दुष्ट आत्मा, Start worshiping निराश God. होने की दुष्ट आत्मा Start यीशु worshiping के God. नाम से तोड़ी जाए। Oh, the Spirit of God is over here. परमेश्वर की पवित्र आत्मा यहाँ Every है। generational curse, ओ हर पीढ़ियों का जो श्राप है, every generational curse, हर पीढ़ियों का जो श्राप है, we break you. यीशु के नाम से हम तोड़ देंगे। Enemy, you are a loser. ओ शत्रु तू हारा हुआ Rabababa, है। Shakana, Haduna, यीशु के नाम Rikanaba. से रिबा Every बाबा, every restraints, let there be breakthrough in the next few months in the name of Jesus. आने वाले कुछ महीनों में परमेश्वर आर्थिक रीति से आपको छुटकारा देने पाए। Rabakena ba sandera janadina risha sekene. Everyone by the authority that the Lord has given to me, I decree in Jesus' name. यीशु के नाम से जो अधिकार मुझे मिले हैं, Jesus' name. यीशु के नाम से घोषणा Every करता हूं, chains be broken. हर जंजीरें टूटने Rabba पाए। khana banaba shakana. यीशु के नाम जंजीर टूटने पाए, जंजीर टूटने पाए. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. This Redeemer is going to buy you back. ये जो छुड़ाने वाला है वो आपको वापस खरीद He is लेगा। going to buy you back. वो आपको वापस खरीद लेगा। 26 years ago, He bought you back. वो आपको कुछ राखा साल पहले बाबा। उसने वापस खरीदा है। Oh, by His blood, He has bought you. यीशु के लहू के द्वारा उसने आपको He खरीदा paid a है। big price. उसने एक बड़ी कीमत आपके छुटकारे And के He लिए is going to चुकाई है। liberate you in Jesus' वो name. आपको फिर दोबारा छुड़ाएगा यीशु के He's नाम giving से। you freedom. वो आपको आजादी दे रहा है। Freedom in spirit. वो आपको आत्मा में आजादी Freedom दे in रहा है। spirit, freedom in आत्मा में spirit. आजादी दे रहा है। Rabababa यीशु के नाम से। shedene. Hallelujah. He's going to restore you. He's going to restore वो you. आपको दोबारा से बहाल करेगा। He's going to restore वो you आपको दोबारा से पुनः in the बनाएगा। name of Jesus. अगर आप यीशु में बदलेंगे, Every challenge against your family, हर चुनौती आपके परिवार every के challenge खिलाफ, against your family through enemy, हर चुनौती आपके परिवार के खिलाफ, through against your business, आपके बिजनेस के खिलाफ, against your company, आपकी कंपनी के खिलाफ, against your health, आपकी सेहत के खिलाफ, we cancel it in the name of हम Jesus. यीशु के नाम से उसको कैंसिल करते हैं। यीशु के नाम से। Oh, hallelujah.
Hallelujah. Our strong Redeemer is going to plead your cause. हमारा जो शक्तिशाली छुड़ाने वाला है वो आपके विषयों के लिए विनती करेगा, He is going to plead your वो cause. आपकी विनतियों के लिए निवेदन करेगा। Oh, hallelujah. तेरा धन्यवाद। And when He pleads your cause, जब वो आपके विषयों के लिए विनती निवेदन करेगा, answer is sure to come. ये पक्का है कि समाधान उत्तर आएगा। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। God is going to open some doors. परमेश्वर कुछ दरवाजे खोलेगा। He's going to open the floodgates of heaven for you. वो परमेश्वर आसमानी झरोकों को आपके लिए You have खोलेगा। been investing for God. आप परमेश्वर के लिए निवेश कर रहे Your हैं। tithes and offering are acceptable before God. आपका दान और दशमांश परमेश्वर स्वीकार करता है। He will honor you. वो आपको इज्जत देगा। Our strong Redeemer will rescue us from the dominion of darkness. हमारा जो शक्तिशाली छुड़ाने वाला है वो हमको अंधकार के शासन से छुड़ा लेगा। Our strong Redeemer will rescue you from the dominion of darkness. वो जो अंधकार का जो शासन है, अधिकार है, वो हमको उससे भी छुड़ा लेगा। That cloud of darkness. वो अंधकार से भरा हुआ जो वश है, That cloud of darkness is moving वो away from बादल you. जो अंधकार के हैं आपसे दूर हट रहे हैं, That is moving away from your वो family. आपसे आपके परिवार से दूर हट You रहे can हैं। take this word. आप ये वचन अपने लिए ले That सकते cloud हैं। of darkness. वो अंधकार के जो बादल हैं, That cloud that is filled with despair and tears. वो जो आंसुओं से और निराशा से भरे वो बादल हैं, That cloud that is filled with anxiety and stress. वो तनाव और चिंता से भरे वो जो बादल हैं, That cloud that is filled with depression. वो बादल जो आपके जीवन में निराशा से It's भरे हैं, moving away from वो you. हट रहे हैं आपके ऊपर से। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। That is what we see in Colossians chapter 1. वही हम कुलोसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में देखते हैं। Colossians chapter 1 verse 13 and 14. कुलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 13 और 14 It says He has delivered us from the domain of darkness and has transformed us to the kingdom of His beloved वहाँ Son. लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। He has transformed us into the kingdom of His beloved Son, उसने अपने प्रिय पुत्र परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश in कराया whom है, we have redemption. जिसमें हमारा छुटकारा है, In whom we have redemption. जिसमें हमारा छुटकारा है। Hallelujah. यीशुआ, Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Our strong Redeemer will rescue us from all wickedness. हमारा जो शक्तिशाली छुड़ाने वाला है वो हर दुष्टता से हमें बचा लेगा। Our strong Redeemer will rescue us from all हर wickedness. प्रकार की दुष्टता से ये शक्तिशाली छुड़ाने वाला हमें निकाल लेगा बाहर। Titus 2 verse 14. तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय का Titus 2:14, it says, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. ऐसा लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। Oh, He gave Himself to redeem you and me. उसने अब हमारे लिए हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को दे What दिया। can you give back? आप क्या वापस दे सकते He हैं? gave Himself for you. उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया। He gave Himself everything. उसने अपना सब कुछ आपके लिए दे दिया। What can you give back? आप वापस क्या दे सकते Let हैं me उस place परमेश्वर this को? question before you. क्या मैं आपके सामने ये प्रश्न रख सकता हूँ? What can you give back? आप परमेश्वर को वापस क्या दे सकते हैं? Hallelujah. You can speak to God and say, God, I'm going to give you this आप back. परमेश्वर से बात कर सकते, बोल सकते, परमेश्वर मैं आपको ये वापस God, I'm going to give my time. परमेश्वर मैं अपना समय आपको वापस God, I'm going to give my petrol, my diesel. परमेश्वर मैं आपको अपना पेट्रोल अपना डीजल वापस God, I'm going to give my tithe, my offering. परमेश्वर मैं अपना दान और दशमांश आपको वापस God, I'm going to give my home, my place
for meetings. परमेश्वर मैं अपना घर और अपने घर का स्थान आपकी आपकी प्रार्थना के लिए मैं समर्पित कर दूंगा। When he gave himself, what are you able to give him जब back? उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया तो हमारे पास अब क्या है उसको देने के लिए? Hallelujah. The next thing, अगली बात, a strong Redeemer has rescued us from the empty way of life. और हमारे इस शक्तिशाली छुड़ाने वाले ने उस खाली जीवन में, उस खोखले जीवन में हमको एक मार्ग He दिखाया है। rescued you from that empty way of life. हमारे जीवन में जो खोखला एक मार्ग, खाली मार्ग था, उससे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। You got what I have to say? आप समझ लिए मैंने क्या कहा? Emptiness. वो खालीपन था, Empty, everything empty. हर चीजें खाली पड़ी थी। No one to even ask about you. कोई नहीं था हमारे बारे में पूछने Your वाला। very own went away from you. हमारे अपने ही हमसे दूर हो गए। In sin, in that miry clay. उस पाप में, उस दलदल में चले गए। Emptiness all around. चारों तरफ अकेलापन था। At that time, उस समय में my Jesus came. यीशु आए। He took you out. यीशु ने आपको बाहर He निकाला। took you out of that emptiness. यीशु ने आपको उस खालीपन से He बाहर made निकाला। you to stand on that solid rock. यीशु ने आपको अनुग्रह दिया कि आप उस दृढ़ चट्टान पर And खड़ा He हो सके। filled your और emptiness. उसने आपके खालीपन को भर दिया एक बार Can you फिर say से। amen with me if you क्या agree? आप आमीन कह सकते हैं अगर आप He विश्वास करते filled हैं। your emptiness. उसने आपके खालीपन को भर दिया। He has filled you with His joy and उसने gladness. आपको अपने आनंद और खुशी से भर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Lot of broken hearts over here. बहुत से टूटे हृदय हैं यहाँ पे। I know it in my spirit. मैं अपनी आत्मा में जानता हूँ। Lot of broken hearts. बहुत से टूटे हृदय हैं। No one to stitch it, no one to mend it, कोई है नहीं है जो उस टूटे दिल को दोबारा से no जोड़ one दे। to repair it. कोई नहीं है जो उस टूटे दिल को एक बार फिर से उसकी मरम्मत कर But दे। let me tell you that strong Redeemer is going to take care लेकिन of it. मैं बताना चाहता हूँ कि वो शक्तिशाली छुड़ाने वाला कर सकता है। Hallelujah. Our strong Redeemer has redeemed you from all fear. उस मजबूत छुड़ाने वाले ने आपको हर डर से, हर भय से छुटकारा दिया। Amen. Our strong Redeemer, your strong Redeemer has brought you out of that fear. ये अद्भुत, ये शक्तिशाली छुड़ाने वाला आपको डर से बाहर लाया है। Fear, fear, fear. डर, डर, डर। Fear every time, fear. हमेशा डर, हमेशा डर। Oh, the spirit of fear. ओ ये आत्मा जो डर की आत्मा This है, is not been sent by God. ये परमेश्वर से भेजी नहीं गई The है। spirit of fear is not sent by God. ये डर की आत्मा को परमेश्वर ने नहीं भेजा The है। spirit of fear has been sent by Satan over you. शैतान ने डर की आत्मा को आपके ऊपर In भेजा the है। name of Jesus. यीशु के नाम में Start praying with me. मिलकर मेरे साथ प्रार्थना Every करें। spirit of fear, हर वो डर की आत्मा we cancel it in the name of Jesus. यीशु के नाम से उसको कैंसिल करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In 2 Timothy 1:7 it says, God has not given a spirit of fear. ओ दूसरा तिमोथी उसके पहले के साथ में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। God has not given a spirit of fear, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी but है। He has given us spirit of power and लेकिन love. परमेश्वर ने हमें प्रेम और सामर्थ्य की Wow. आत्मा दी है। Hallelujah. Hallelujah. What spirit? Spirit of power. परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य की God आत्मा has दी है। given you and me spirit of power. परमेश्वर ने आपको और मुझको सामर्थ्य की आत्मा दी है। So next time when Satan is going to bring fear, जब अगली बार शैतान आपके सामने डर लेकर आता है, take the word of God. परमेश्वर के वचन को ले ले, Take the word of God परमेश्वर के वचन को ले ले and start saying to Satan, और शैतान से बोलना शुरू कर hey दे। devil, you have no authority. शैतान तुझे कोई अधिकार नहीं You है, have no authority. तुझे कोई अधिकार नहीं You है, are a loser. तू हारा हुआ है, You are a loser तू हारा हुआ है, because my God has won victory for me. क्योंकि मेरे परमेश्वर ने तेरे ऊपर विजय ले ली है। Hallelujah. यीशु के नाम से Every spirit of fear, I remove it from Life Bridge in the name of Father, Son, and Holy Spirit. लाइफ ब्रिज के ऊपर से हर डर की आत्मा को हम परमेश्वर और यीशु और पवित्र आत्मा के नाम से दूर करते हैं। Hallelujah. आमेन। Start speaking.
बोलना शुरू करें। God has given you authority, my dear child of God. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया Why है। do you keep quiet? आप चुप क्यों रहते हैं? Why do you remain silent? आप शांत क्यों बैठते हैं? God has given you that authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। Don't remain silent. चुप ना रहे, You need to say. आपको बोलना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। This beautiful Hindi song, it says, शैतान का सामना करो. वो भागेगा। वो क्या है? भागेगा. Hallelujah. If you face the devil, he will resist. If you resist the devil, it will flee. शैतान का सामना करो, वो भागेगा. वो पहले से ही क्या है? This Hindi song says, if you face the devil, it will flee because it is already a loser. Amen. God has made you the head and not the tail. परमेश्वर ने आपको सिर बनाया है और पूंछ नहीं। Say after me. मेरे साथ बोले, God परमेश्वर has made me परमेश्वर ने मुझे the head सिर बनाया है, and not the tail. पूंछ नहीं बनाया है। Hallelujah. I'm not going to live my life like a tail. मैं पूंछ की तरह अपना जीवन नहीं बिताऊंगा। I am not going to live my life like a मैं tail. पूंछ की तरह अपना जीवन नहीं बिताऊंगा। I am the only child of God. बस मैं ही वो एक लौता परमेश्वर की I संतान हूँ। belong to that royal priesthood. मैं उस राजकीय परमेश्वर, उस राज्य पधारी So का, I am more than a conqueror. इसलिए मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। Hallelujah. Praise God. God has rescued us. परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। He has rescued us. Our strong Redeemer has rescued us from the hand of the enemy. इस शक्तिशाली छुड़ाने वाले ने हमको हमारे शत्रु से छुड़ाया है। Wow. Can I hear amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Lot of enemies, बहुत से शत्रु हैं, lot of challenges. बहुत सी चुनौतियां हैं। Dear brother, प्रिय भाई, your challenge is something that is more than you can bear. आपकी जो चुनौतियां हैं आपके सहने से भी ऊपर है। But can I tell you something? लेकिन क्या मैं आपसे कह सकती You are more than a conqueror. हूँ, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। Hallelujah. Amen. Your challenges from enemy is accepted. Challenge accepted because God is alive. Amen. हम शत्रु से कह सकते हैं कि हमने तेरी चुनौती को ले लिया है क्योंकि मेरा छुड़ाने Hallelujah. वाला जीवित है। Hallelujah. Challenge what? Challenge what? Accepted. ये चुनौती को मैं ले लेता हूँ शैतान Because से my Redeemer is alive. क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Can anyone stand against God? क्या परमेश्वर के विरोध में कोई खड़ा हो सकता Can है? anyone go against God? क्या कोई परमेश्वर के विरोध में जा No सकता है? one, no one, no कोई भी one. नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। Jesus. Jesus. Our strong Redeemer. हमारा मजबूत शक्तिशाली छुड़ाने वाला, मेरा उद्धार करता, मेरा उद्धार करना, मुझे छुड़ाने वाला. मेरा छुड़ाने वाला। ओ वो मेरे साथ संग संग है. My strong redeemer is always with me. He's with me. वो मेरे साथ है, He's for me. वो मेरे लिए है And he will be with me. और वो मेरे साथ रहेगा। Jesus. यीशु, यीशु, यीशु। I know God is giving you some songs. I know that. मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको गीतों को दे, God is blessing you with some songs now to sing. परमेश्वर आपको गीतों को दे रहा है कि आप गाएं। Those songs are from God. वो परमेश्वर से वो गीत हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Psalm 107 verse 1 and 2. भजन संहिता 107 Psalms- उसका 1 और 2। Psalms 107 verse 1 and 2. भजन संहिता 107 उसका 1 और 2। Can we read together? क्या हम मिलकर पढ़ सकते हैं? Everyone. सब लोग। 107 का 1 और 2. It says, give thanks यहोवा to the की Lord, धन्यवाद करो, क्योंकि for वो he is भला है good. और His उसकी love करुणा endures सदा की है। forever. Verse 2. यहोवा की Let the छुड़ाए redeemed हुए of the Lord
जिन्हें tell their story. उसने शत्रु के हाथ से दाम दे Those he redeemed from the hand of the foe. You have a story to say. आपके पास एक कहानी है कहने Got के it? God is going to give you a story. परमेश्वर आपको एक कहानी देगा Say amen with me, my dear child. एक साथ मिलकर आमीन God करें is going to give you a new story. परमेश्वर आपको एक नई कहानी देगा New kahani, new story. नई कहानी And that story will be amazing. और वो जो नई कहानी होगी वो अद्भुत होगी What did we read in 107 verse 1 and 2? Let the redeemed say of their story. एक वचन संहिता 107 के पहले पद में क्या लिखा है कि जो लोग हैं वो अपनी कहानी कहें Your story was not pleasing to be heard. आपकी जो कहानी थी वो सुनने के लिए बहुत अच्छी नहीं थी Until now, अभी तक भी your story was of no use. आपकी कहानी किसी काम की नहीं है The moment others listen to your story, oh no, the same. जब भी कोई आपकी कहानी सुनता है बोलता है अरे ये तो वैसी ही कहानी है वो तो ऐसी ही है Can I say something? क्या मैं आपसे सब कुछ कह सकता Can हूँ I say something? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ आपसे God can change your story. परमेश्वर आपकी कहानी बदल सकते हैं I cannot change. मैं नहीं बदल सकता My dear child of God, God can change your story. परमेश्वर आपकी कहानी बदल सकते And when He हैं writes, when He begins to write story about you, और जब वो कहानी लिखना शुरू करते there हैं will be chapters. वहाँ पर पाठ होंगे There will be chapters. वहाँ पर एक के बाद एक पाठ होंगे Lot of good stories. बहुत सी कहानियां होंगी Stories where you are going to declare the goodness of God. वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जहाँ पर आप परमेश्वर की भलाइयों के बारे में Stories where you will say that I cried and my Lord answered me. ऐसी कहानियां होंगी कि आप रोए थे मैं रोया था और परमेश्वर ने मेरी सुनी Stories where you will describe the faithfulness of God. जहाँ पर आप ऐसी कहानी लिखेंगे जहाँ परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में आपने देखा Stories about healing. वो कहानियां ऐसी होंगी जो चंगाई की होंगी Stories about miracles. ऐसी कहानियां होंगी जो चमत्कार की होंगी Let the redeemed of the Lord say their story. वो जो छुड़ाने वाला है जो छुड़ाया हुआ है अपनी कहानी को कहे How many of you want God to rewrite your story? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर तू मेरी कहानी को दोबारा से लिख Dobara. Rewriting story doesn't belong to me. जो दोबारा कहानी लिखना है वो मेरे हाथ में नहीं है Rewriting of story belongs to the Creator. जो दोबारा कहानी लिखना है वो सृष्टिकर्ता ही कर सकता I है want all of you to stand in the presence of चाहता God. हूँ आप सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं